End your call. Roll number 5. Six. Roll number 6. 12. Yes, sir. 13. 13. Roll number 13. Yes. 16. Present, sir. 18. 18. 21. Yes, sir. 22. 22. 23. 23. 24. Present, sir. 31. Yes, sir. 32. 33. 35. Anyone? अमन, रोल नंबर क्या बेटे? कौन सा अमन बोल रहे हो? अमन सिंह या अमन कुशवाहा? रोल नंबर 5 या 6? Any other student?
ओके, लगा दिए रोल नंबर 5। ओके, एनी अदर स्टूडेंट, किसी का अटेंडेंस रह गया हो? नो। Now continues the previous lecture. We are here the law of radiation. Law of radiation. I will discuss in the most important thing according to your syllabus, that is Stephen Boltzmann law. Stephen Boltzmann law ये होता क्या है? In this law we know, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको हिंट्स आपको दे देंगे बाकी लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन law is state that the total एम्बेसी पावर हमने कल पढ़ा था, है ना, ऑफ ए ब्लैक बॉडी is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. Absolute temperature, that means we can say EB. E is the MBC power, EB. B is the black body, is the directly proportional to temperature T4, या हम ऐसे लिख सकते हैं EB इक्वल्स टू सिग्मा T। सिग्मा की वैल्यू होती है that sigma value where sigma equals to 5.67 multiply 10 to the power -8 work meter Kelvin is called the Stephen Boltzmann constant स्टीफन बोल्ट कांस्टेंट, मतलब टोटल एम्बिसिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, राइट? It is
we know that the determination that Stephen Boltzmann is constant, that constant is the sigma. Sigma की वैल्यू क्या है? 5.67 multiplied by the 10 to the power 8. ओके, 10 to the power 8. तो अभी इसको हम डिटरमाइन करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन कि हम फाइंड आउट करेंगे कि ये इसकी डिराइव द एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन डिराइव करके ये वैल्यू आता है, कितनी वैल्यू आएगी, राइट? ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन. तो बिकॉज वी नो दैट कि स्टीफन जो है ये लॉ है स्टेट दैट इज द एमबीसी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ द टेम्परेचर. तो इसका मतलब है कि वी नो determination of Stephen Boltzmann constant, that is the sigma. तो सिग्मा क्या होता है? We know that the value of sigma can be determined by according to the integrating of equation of Planck law equation. अब आपको प्लैंक लॉ तो मैंने अभी बताया नहीं, चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर प्लैंक लॉ भी बता दूँ. बाय द integrating equation between लिमिट हम लेंगे between limit lambda equals to 0 to lambda equals to infinity. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन? अकॉर्डिंग टू द Planck equation, that equation is EB equals to integration lambda equals to 0 और lambda equals to infinity. ये हमारा लिमिट हो गया. देन E B lambda D lambda. आपको एक प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डायग्राम ड्रा करके दिखाया था, है ना, कि एक हम स्ट्रिप लेते हैं और स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हम उसे ड्राइव द एक्सप्रेशन हम इंटीग्रेट करते हैं. इसको हम और लिख सकते हैं इंटीग्रेशन lambda equals to 0, lambda equals to infinity according to the Planck equation, Planck law, C1 2 pi C1 की पावर lambda की पावर 5 E की पावर C2 by delta T minus 1 multiply by D delta, राइट? ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. ये हमारा इक्वेशन 1. लेट मान लिया सपोज x इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. सपोज ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है. तो ये सारे हम प्लैंक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ड्रा कर रहे हैं, लिख रहे हैं जो अपॉन लैम्डा इक्वल टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी लैम्डा. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी लैम्डा इक्वल टू माइनस
lambda स्क्वायर dx, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो when put the value of the lambda equals to 0 and x equals to infinity, so how can write over there in equation number 2, when lambda equals to 0, x equals to infinity, and when lambda equals to infinity, x is to x equals to 0 from equation 2. Therefore, d lambda equals to dy की power 5 lambda power 5 equals to minus lambda square upon lambda की power 5 multiply by dx, right? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इक्वल्स टू 1 अपॉन lambda की पावर 3 dx माइनस x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय द dx। नाउ इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं और इसकी वैल्यू को हम रिड्यूस करते हैं, राइट? So we can write using the above equation, above relation, the equation 1 reduced to, that is EB equals to 2 pi C1 integration x equals to infinity, x equals to 0 and x equals to infinity, okay, minus x की पावर q e c2 x by t minus 1 dx। Also we can write EB equals to 2 pi C1 x equals to 0 और x equals to infinity x की पावर q e c2 x by t minus 1 dx। इसको और रिड्यूस कर लीजिए, इसको EB 2 pi C1 x equals to 0 x equals to infinity x की पावर q c2 x upon t plus e 2 c2 x upon t plus e minus 3 c2 x upon t। ये करते चले जाएंगे और बहुत लंबा इक्वेशन बनता जाएगा, इसको लंबा इक्वेशन बहुत लंबा इक्वेशन होता चला जाएगा।
है ना, dx मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे तो 1 2 3 4 सारा चीजें बनता चलेगा, राइट, गॉट इट। तो इसको और हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से, इस इक्वेशन को ई बी इक्वल टू 2 पाई c1 इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इंफिनिटी x की पावर 3 e माइनस c2 i x अपॉन t dx, है ना, मतलब वेयर i इक्वल टू 1 2 3, जितना भी हम करते जाएंगे इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, राइट। बट ये n नंबर तक है, तो दैट इज द इन n नंबर इज आयोटा इज द n नंबर, बहुत लंबे ड्राइव द एक्सप्रेशन होगा, उसको मैं और इसको और छोटा कर देता हूँ, बट बट बुक में आप देखोगे ड्राइव एक्सप्रेशन इसका और लंबा होगा इसकी, मैं आपको इसके और छोटे करके बता देता हूँ, एन ए एक्स मल्टीप्लाई बाय द डी एक्स इक्वल टू एन आयोटा अपॉन, क्योंकि इन्फिनिटिव है, अपॉन ए एन प्लस 1, ये है ना, that means we can write EB equals to 2 pi C1 C iota is upon C2 I upon T 3 plus 1 equals to 2 pi C1 multiply 3 multiply by 2 multiply by 1 upon C2 की पावर 4 upon T की पावर 4 multiply iota की पावर 4, I की पावर 4, right, I की पावर 4, I की पावर 4, इसको और हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी नेटवर्क चला गया था, ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई बी इक्वल टू 12 पाई C1 T की पावर 4 अपॉन C2 की पावर 4 पाई की पावर 4 अपॉन 90। नाउ ऑन द सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ द वैल्यू C1 और C2 की वैल्यू हम पुट करें, C1 और C2 की वैल्यू ऑन substituting the value of
C1 and C2, C1 and C2 इसकी वैल्यू पुट करें तो EB equals to 12 pi 0.596 multiplied by 10 to the power minus 16 upon 1.4387 multiplied 10 to the power minus 2 the whole power is 4 multiply by pi by 4 upon 90 multiply by t की power 4 temperature because this is the fourth temperature is the T4 ये लिखते हैं ना T4 तो इसको हम इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं क्योंकि बोल्ट्जमैन क्या है T4 है तो हम ये लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन का T that is the EB equals to 5.672 multiply by 10 to the power minus 8 t की पावर 4 ये इक्वेशन नंबर 5 है ये हमारा बोल्ट्जमैन की इक्वेशन होगी राइट बोल्ट्जमैन की इक्वेशन होगी तो according to this concept we know that this is the equation is find out so Stephen Boltzmann constant equation sigma equals to 5.672 multiplied 10 to the power minus 8 is equal to and that is 5.67 multiplied 10 to the power minus 8 Kelvin power 4 this is the equation and this is the value is the sigma value अगर मैं सरफेस एम्बिसिविटी लेते हैं दूसरा चीज है ये तो था एम्बिसी पावर था अगर हम सरफेस एम्बिसिविटी लेते हैं जिसको हम डिनोट करते थे सिग्मा से डिराइव एक्सप्रेशन किया था ना आपने डिराइव एक्सप्रेशन किया था ना स्टीफन other surface having emissivity that is denoted by the sigma ऐसे करते थे है ना तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता था हम क्या लिखते थे दैट इज इक्वल्स टू ई अपॉन ब्लैक बॉडी ई बी तो इस केस में हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन इस केस में हम क्या लिख सकते हैं E equals to summation of this one multiply by sigma t की power 4 right got it this is the equation we can find out over there okay anybody any question